بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ولادیمیر کی مجبوری یہی تھی کہ وہ تنہا تھا اور پائلٹ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ ہمارے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جمانے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر وہ اس کے دماغ کو ذرا سی بھی ڈھیل دے گا تو کوئی بھی اس پر قبضہ جما لے گا، پھر وہ اس جہاز میں اپنی منمانی نہیں کر سکے گا۔ سونیا نے ایک دھڑاکے سے پائلٹ کیبن کا دروازہ کھولا، اچھل کر اس کی سیٹ پر پہنچی۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور اسے کبھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر پائلٹ کے سر کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیا، پھر اس کی گردن کو زبردست جھٹکا دیا کہ اس کے حلق سے اون کی آواز نکلی۔ اس کے بعد وہ بولنے کے قابل نہیں رہا، اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے پائلٹ کے بے جان جسم کو کھینچ کر ایک طرف پھینکا، پھر فوراً ہی اس کی سیٹ پر پہنچ کر جہاز کو کنٹرول کرنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے جہاز کے اسٹاف کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے؟ ایک نے کہا، یس میڈم، سبھی ہمارے قبضے میں ہیں۔ عدنان کے پاس کون ہے؟ میڈم، عبداللہ وہاں موجود ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ مائک میں بولی، ولادیمیر کتے، تو بار بار اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آئے گا تبھی میرے پوتے کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ یہ تیرا تیسرا اور آخری حملہ تھا، اس کے بعد اب میں حملہ کروں گی، بچنے کے راستے ڈھونڈ لے۔ وہ بول رہی تھی اور ولادیمیر ایک کلاکار کے دماغ میں رہ کر اس کی بات سن رہا تھا۔ مجبور تھا، کسی کے ذریعے حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سب کے دماغوں پر ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ دوسری طرف آوازون کو پائلٹ کے دماغ میں رہ کر حیرانی سے سونیا کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی تیز ترار ذہین اور حاضر دماغی اس نے اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس خطرناک عورت کے قریب تھا لیکن اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے آس پاس موجود ہیں، اس کے حملے کو ناکام بنا دیں گے۔ ولادیمیر اگر چاہتا تو مائک لے کر سونیا کو چیلنج نہ کرتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کی دادی ماں کو مجبور اور بے بس کر کے اس سے یہ شرط منوائے کہ وہ طیارے کو کہیں اتارے گا اور وہ اپنے پوتے کے ساتھ وہاں اتر جائے گی۔ پھر وہ اپنے کئی اہلکاروں کے ساتھ وہاں پہنچ کر منظم ہو کر اس پر حملہ کرے گا، دادی اور پوتے کو وہاں ختم کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدنان کو مارنا ہی تھا تو اس نے جہاز کو نیچے کیوں نہیں گرا دیا؟ جہاز تباہ ہوتا تو دادی اور پوتا دونوں ہی مر جاتے، لیکن مجبوری تھی، بہت مجبوری تھی۔ اس بچے کو ہلاک کرنے کی ایک ہی شرط تھی کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مارے گا، کسی کے ذریعے اسے ہلاک نہیں کرے گا۔ تقدیر نے خوب چکر چلایا تھا اور وہ ایک ننھے سے بچے کو ہلاک کرنے کے لیے چکراتا جا رہا تھا۔ جہاز کی پرواز پھر معمول پر آ گئی، تمام مسافر اطمینان کی سانس لینے لگے۔ ایئر ہوسٹس نے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کہا، خواتین و حضرات، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو کچھ دیر ناگوار حالات سے گزرنا پڑا، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اب حالات قابو میں آ گئے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم آپ کو بخیریت آپ کی منزل تک پہنچائیں گے۔ سونیا پائلٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی جہاز کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کے قریب ایئر ہوسٹس کھڑی ہوئی مسافروں کو مطمئن کر رہی تھی کہ اب انہیں ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں جہاز کے حملے سے اب کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہاں کو پائلٹ اور ایک اسٹیورڈ کھڑا ہوا تھا، وہ دونوں پریشان ہو کر جہاز کے پائلٹ کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ سونیا نے اس کی گردن توڑ دی تھی اور لاش کو ایک طرف پھینک دیا تھا۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے جہاز کے تمام عملے کو کنٹرول کر رہے تھے، ہر طرف سے محتاط تھے۔ یہ اندیشہ تھا کہ کو پائلٹ اور اسٹیورڈ وغیرہ اپنے پائلٹ کی موت پر انتقامی رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ آوازون بھی وہاں انابیلا کی مدد سے پہنچا ہوا تھا اور اس وقت کو پائلٹ کے دماغ میں تھا۔ حیرانی سے سونیا کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا بلا ہے۔ اس نے آتے ہی آؤ دیکھا نہ تو پائلٹ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آوازون بھی یہی کر سکتا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ جہاز تباہ ہو اور عدنان کو نقصان پہنچے۔ وہ عدنان کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا۔ جب ولادیمیر کے چیلنج کے مطابق سونیا اس سے سمجھوتا نہ کرتی اور اس جہاز سے اپنے پوتے کے ساتھ اتر جانے پر راضی نہ ہوتی، تب وہ جہاز کو گرانے والا تھا۔ ایسے وقت آوازون نے سوچا تھا کہ وہ پائلٹ کو زخمی کر کے اس کے دماغ میں جگہ بنائے گا اور اس کے اندر رہ کر ولادیمیر سے فائٹ کرے گا، اس جہاز کو بچا سکے گا۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہوتا جب سونیا ولادیمیر کو کوئی جواب دیتی کہ وہ سمجھوتا کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ ولادیمیر اس کے جواب کا انتظار ہی کرتا رہا، اس سے پہلے ہی وہ پائلٹ کیبن میں گھس کر اپنا کام دکھا چکی تھی۔ اس نے آن کی آن میں بازی پلٹ دی تھی، پائلٹ کو اس کی سیٹ پر سے اٹھا کر مردہ بنا کر ایک طرف پھینک دیا تھا اور اب جہاز کو کنٹرول کر رہی تھی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ آوازون سوچتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ ولادیمیر نے ناکام ہوتے ہی کنٹرول ٹاور والوں سے رابطہ کیا۔ اس نے تاشکند کے ایئرپورٹ والوں سے کہا، جو طیارہ بھی یہاں سے گزر کر گیا ہے، اس میں مشہور زمانہ فرحاد علی تیمور ٹیلی پیتھی جاننے والے کی وائف سونیا سفر کر رہی ہے۔ اس نے اس طیارے کے پائلٹ کو مار دیا ہے اور جہاز کو خود چلا رہی ہے۔ وہ جہاز 2 گھنٹے کے بعد دوشنبے پہنچنے والا تھا۔ ولادیمیر نے دوشنبے کے ایئرپورٹ والوں سے بھی یہی کہا کہ فرحاد علی تیمور کی وائف نے طیارے کے پائلٹ کو مار ڈالا ہے اور طیارے کو خود کنٹرول کر رہی ہے اور دوشنبے کی طرف آ رہی ہے، اس کا محاسبہ کیا جائے۔
ताशकंद और दुशांबे के कंट्रोल टावर्स वाले पूछ रहे थे कि तुम कौन हो और तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसकी अभी तस्दीक करो। कंट्रोल टावर वालों ने जहाज के पायलट से राब्ता किया तो इन्हें सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, मैंने तैयारे को तबाही से बचाया है, तुम्हारा पायलट एक टेलीपैथी जानने वाले की गिरफ्त में आ गया था। वो टेलीपैथी जानने वाला मुझसे दुश्मनी कर रहा था, मुझे मारने के लिए पूरे तैयारे को तबाह करना चाहता था। हमारे टेलीपैथी जानने वालों ने इस पायलट को अपने कब्जे में लेना चाहा, लेकिन बुरी तरह व्लादिमीर नामी टेलीपैथी जानने वाले के कब्जे में आ चुका था, किसी तरह से हमारे काबू में नहीं आ रहा था और ये तैयारा तबाह होने वाला था। ऐसी सूरत में एक ही रास्ता रह गया था और वो ये कि पायलट को खत्म कर दिया जाए तो वो टेलीपैथी जानने वाला व्लादिमीर भी इस तैयारे से चला जाएगा, फिर ना वो मुझसे दुश्मनी कर सकेगा और ना ही तैयारे को तबाह कर सकेगा। कंट्रोल टावर से कहा गया कि हमारे को पायलट से बात करवाओ। सोनिया ने को पायलट को माइक दिया। इसने कहा, यस सर, मैं को पायलट बोल रहा हूँ। मैडम सोनिया दुरुस्त कह रही हैं। पायलट पागल हो गया था, जहाज को तबाह कर देना चाहता था। जहाज को बचाने के लिए जरूरी था पायलट को मार दिया जाए। क्या इसकी जान बचाई नहीं जा सकती थी? नो सर, और कोई रास्ता नहीं रह गया था। इस तैयारे में 200 मुसाफिर सफर कर रहे हैं। इतने सारे मुसाफिरों की जान बचाने के लिए एक पायलट को मार डालना पड़ा, जिसके लिए हमें अफसोस है। दूसरी तरफ से कहा गया, ये तैयारा अब तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए। क्या तुम इसे दुशांबे तक नहीं ले जा सकते? यस सर, ले जा सकता हूँ, लेकिन अब मैडम सोनिया किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगी, इसलिए वो खुद ही ले जा रही हैं और परवाज बहुत ही नॉर्मल है। मुसाफिर मुतमिन है, ऐसे में एतराज नहीं करना चाहिए। सोनिया से पूछा गया, मैडम क्या आप तैयारे को सही और सलामत दुशांबे तक ले जा सकेंगी? हम बाबा साहब के इदारे वालों ने ऐसी बहुत सी ट्रेनिंग हासिल की है। तैयारा क्या चीज़ है, हम रॉकेट भी उड़ा सकते हैं, समुद्र की गहराइयों में सबमरीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप फिक्र न करें, ये तैयारा सही सलामत दुशांबे पहुंचेगा। आपका एक एक मुसाफिर इस बात की गवाही देगा कि मैंने इन सब की जान बचाई है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपसे दुशांबे एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी। कंट्रोल टावर वालों से राब्ता खत्म हुआ तो सोनिया ने अपनी टेलीपैथी जानने वालों से कहा, दुशांबे एयरपोर्ट पर ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, जबकि मैं कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकूंगी। मैंने 200 मुसाफिरों की जानें बचाने के लिए एक को हलाक किया है। मुझे किसी भी कानून के तहत मुजरिम नहीं गर्दाना जा सकता, लेकिन वहाँ व्लादिमीर खिचड़ी पका रहा होगा, वो मेरे खिलाफ बहुत कुछ कर सकता है। लिहाजा हमारे कुछ टेलीपैथी जानने वालों को अभी दुशांबे एयरपोर्ट के हमले के अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो दुश्मन क्या करता फिर रहा है। पहले व्लादिमीर ने दोबारा इस तैयारे के अंदर आने की कोशिश की थी। एयर होस्टेस और पायलट के दिमाग के अंदर आकर बोलना चाहा तो हमारे टेलीपैथी जानने वालों ने उसे भगा दिया। उससे साफ साफ कह दिया कि तुमसे कोई बात नहीं होगी, यहाँ जिसके भी दिमाग में आओगे वो अपनी सांस रोक लेगा और तुम्हें भागना पड़ेगा। सोनिया ने कहा, अब्दुल्ला मेरे पोते अदनान के पास है, इसकी खबर लेते रहो कि वो खैरियत से है या नहीं। अनाबेला ने कहा, मामा मैं इसके पास आती जाती रहती हूँ, वहाँ इसके अंदर अब्दुल्ला है और मैं भी हूँ, लेकिन आप जानती हैं कि ना हम इसके ख्यालात पढ़ सकते हैं और ना ही वो हमारी सोच की लहरों को सुनता है। बस हम खामोश रहकर इसकी निगरानी कर रहे हैं। बेटी तुम इसके पास रहो और अभी मेरे दिमाग में ना आना, मैं बिल्कुल खामोशी चाहती हूँ। यस मामा, मैं भी जा रही हूँ। फिर सोनिया ने हमारे एक टेलीपैथी जानने वाले से कहा, मैं साले बिन तालबी से कुछ बातें करना चाहती हूँ। पहले अपनी हिकमत अमली से ये मालूम करो कि मेरे अंदर तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तब मैं बात करूंगी। वो यस मैडम कहकर चला गया। अनाबेला घर की बेदी बनी हुई थी, सोनिया के एतमाद को ठेस पहुंचा रही थी। वो वजोन को अपने दिमाग में बिठाकर सोनिया के अंदर ले आई थी। अब वो दोनों ये मौका देखते थे कि सोनिया अपने टेलीपैथी जानने वालों से बातें कर रही होगी तो वो भी इसके अंदर पहुंच जाते थे। ऐसे वक्त सोनिया इन्हें महसूस नहीं कर सकती थी। जब सोनिया ने अनाबेला से कहा कि इसे कुछ देर तक इसके अंदर नहीं आना चाहिए तो वो जरा खटक गई। इसने आवाज़ोन से कहा, तुम सुन रहे हो? वो अपने एक टेलीपैथी जानने वाले साले बिन तालबी से कोई जरूरी बात करना चाहती है। अभी हम मैडम के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक 1 मिनट के बाद जाएंगे। इस वक्त इन्हें यकीन हो जाएगा कि इनके अंदर कोई नहीं है। वो दोनों 1 मिनट तक इंतजार करते रहे। इसके बाद दोनों ही सोनिया के अंदर पहुंचे तो इसने चौंक कर पूछा, कौन है? ये पूछते ही वो दोनों इसके दिमाग से निकल गए। आवाज़ोन ने कहा, हमारी चोरी पकड़ी गई है। वो कमबख्त साले बिन तालबी अभी तक मैडम के दिमाग में नहीं पहुंचा है और हम समझ रहे थे कि वहाँ कोई खास बात हो रही होगी। हम ये भूल गए थे कि मैडम कितनी मकार है। इसने हमारी चोरी पकड़ने के लिए ही साले बिन तालबी को ऐसी हिदायत दी थी। हमने वहाँ जाने में जल्दी की थी, हमें जरा ठहर कर जाना चाहिए था। अब तो कम से कम 3 मिनट गुजर चुके हैं, क्या वो बातें कर रहे होंगे? हाँ 1 मिनट और ठहर जाओ, फिर चलते हैं। वो 1 मिनट और इंतजार करने के बाद सोनिया के अंदर पहुंचे तो वो सख्त लहजे में बोली, अनाबेला वापस न जाना, मेरे अंदर रहो और मेरी बातें सुनो। वो और आवाज़ोन फौरन इसके दिमाग से निकल गए। इसने कहा, आवाज़ोन मुझे अदनान के दिमाग में जाकर रहना चाहिए, वो मेरे बारे में तहकीकात करेगी। ये कहते ही वो अदनान के दिमाग में पहुंची। इसी वक्त एक ख्यालख्वानी करने वाले ने अदनान के अंदर पूछा, अनाबेला क्या तुम यहाँ मौजूद हो? हाँ मैं अदनान बाबा की निगरानी कर रही हूँ। अब्दुल्ला इसकी निगरानी कर रहा था। तुम मैडम के पास जाओ, वो तुम्हें याद कर रही हैं।
वो परेशान हो गई और वज़ोन के पास जाकर बोली, मैडम ने मुझे बुलाया है, मेरा तो दिल डर रहा है, पता नहीं वो क्या कहने वाली हैं। तुम चलो, मैं तुम्हारे दिमाग में रहूंगा और इसकी बातें सुनूंगा। वो मैडम के पास आकर बोली, यस मम्मा, मैं आ गई हूँ। इसी वक्त साले बिन तालबी की आवाज़ सुनाई दी, मैडम मैं भी आ गया हूँ। आपने जो कहा था मैं इस इशारे को समझ गया था। सीधा फरहाद साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे वो खास बात बता दी। अब मैं जा रहा हूँ, इनकी इस खास हिदायत पर अमल करूंगा। सोनिया ने कहा, ठीक है जाओ, और तकरीबन 10 घंटे तक मेरे अंदर न आना। तमाम टेलीपैथी जानने वालों को कह दो कि कोई राब्ता ना करे। वो यस मैडम कहकर चला गया। फिर सोनिया ने अनाबेला से पूछा, ये तुम क्या खेल खेल रही हो? वो हिचकिचाते हुए बोली, मम्मा ये आप कैसा सवाल कर रही हैं? मैं भला क्या खेल खेलूंगी? मैंने मना किया था कि मेरे दिमाग में कोई नहीं आएगा, फिर तुम क्यों आई थी? मम्मा मैं सच कहती हूँ, मैं नहीं आई थी, वो कमबख्त व्लादिमीर आया होगा। दूसरी बार भी तुम आई तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग से ना जाओ, तो तुम फौरन ही भाग गई। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं एक बार भी आपके अंदर नहीं आई? मैं तो अदनान बाबा के पास थी, आपके बुलाने पर अभी आई हूँ। तुम झूठ मत बोलो, जैसे ही तुम यहाँ आई थी वैसे ही मेरे टेलीपैथी जाने वाले ने तुम्हें अदनान के दिमाग में पुकारा था। वहाँ तुम नहीं थी, अगर होती तो जवाब देती। आपका टेलीपैथी जाने वाला दुरुस्त कह रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए अदनान बाबा के दिमाग से भी चली गई थी। बाथरूम जाने की जरूरत थी, इसलिए मैं अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई थी। अनाबेला, अभी तुम मेरे सामने दूध पीती बच्ची हो। मेरा एक टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारी माँ के दिमाग में मौजूद था। उसके जरिए वो देख रहा था कि तुम अपने बेडरूम में बैठी ख्यालखानी में मसरूफ थी, तुम बाथरूम में नहीं गई थी। अब कोई और बात बनाओ, कोई और बहाना करो। मम्मा मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपको माँ की तरह समझती हूँ, और आप मुझ पर शुबा कर रही हैं। जज्बाती बातें ना करो। 2 और 2 4 होते हैं, ना 5 होते हैं, ना 4.5 होते हैं। तुमने अब तक जितनी बातें की वो सब झूठी थी। अब तुम अपनी सच्चाई के लिए क्या कहना चाहोगी? अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी सच्चाई को साबित करूं, सारे शकूक व शुबहात को मिटा दूं। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपनी सच्चाई साबित कर दो, वरना तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैं धोखा बर्दाश्त नहीं करती। अब जाओ, तकरीबन 10 घंटे तक मेरे दिमाग में कोई नहीं आएगा। कोई आएगा तो मैं इसे सांस रोक कर भगा दूंगी। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। वो और आवाज़ोन इसके अंदर से चले गए। इसने आवाज़ोन से कहा, ये बहुत बुरा हो गया, इस मकार औरत ने हमारी चोरी पकड़ ली है। तुम पर तो किसी किस्म का शुबा नहीं है, लेकिन मैं मशकूक हो गई हूँ, बल्कि अब काबिले एतमाद नहीं रही। इसने बड़े ठोस अंदाज में मेरे खिलाफ तहकीकात करवाई हैं और ये समझ लिया है कि मैं ही 2 बार चोरी छुपे इसके अंदर आती रही थी। आवाज़ोन ने कहा, अगरचे हम सोनिया के दिमाग से निकल आए हैं, फिर भी दुशांबे पहुंचने तक इस पर नजर रख सकते हैं। हम मेरे होस्टेस, स्टीवर्ड और को पायलट वगैरह के दिमागों में रहकर इसकी निगरानी कर सकते हैं। अनाबेला ने कहा, जब वो दुशांबे पहुंच जाएंगे तो फिर इस जहाज का हमला हमारे लिए बेकार हो जाएगा। हमें नए अलाकार बनाने होंगे। अदनान हमारे लिए बहुत जरूरी है, तुम फिक्र ना करो। मैं ऐसी कोई तदबीर करता हूँ कि इसके दुशांबे पहुंचते ही मैं इसे उसकी दादी से अलग कर दूं। व्लादिमीर भी अदनान का दुशांबे में इंतजार कर रहा होगा, वो भी यही करना चाहेगा। ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि व्लादिमीर अदनान का पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं भी अपनी मामा से बात करता हूँ। क्या मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर तुम्हारी मामा से मिल सकती हूँ? हाँ जरूर, मैं अपनी मामा से तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। अब वो तुम्हें सुतेली नहीं समझेगी, तुम हमारे साथ हमारी सगी बनकर रहोगी। वो दोनों इरनाकोफ के दिमाग में पहुंचे। आवाज़ोन ने कहा, मामा मैं अनाबेला के साथ आया हूँ। वो चौंक कर बोली, तुम इस सुतेली को मेरे दिमाग में लेकर आए हो? आप इसे सुतेली ना कहें, इसने मेरा साथ दिया है और ऐसा एतमाद हासिल किया है कि आप भी सुनेंगी तो इस पर एतमाद करने लगेंगी। वो व्लादिमीर के खिलाफ हमारा साथ दे रही है, फिर इसने सोनिया के एतमाद से फायदा उठाकर मुझे इसके दिमाग में पहुंचाया है। इरनाकोफ ने रानी से पूछा, क्या वाकई उसने तुम्हें सोनिया के अंदर पहुंचा दिया था? हाँ, अब तक हम सोनिया के दिमाग में थे और वहाँ त्यारे में जो कुछ हो रहा था वो तमाशा देख रहे थे। आवाज़ोन ने त्यारे के मुख्तलिफ हालात बताए। फिर कहा, इस बार भी सोनिया ने बड़ी मक्कारी और बड़ी दलेरी से व्लादिमीर को शिकस्त दी है, उसे त्यारे से भागने पर मजबूर किया है। मामा वाकई वो बहुत ही खतरनाक बला है। ऐसी जबरदस्त मकार है कि उसने अनाबेला की चोरी पकड़ ली है। पता नहीं उसे कैसे शुबा हो गया कि ये उसके खिलाफ कोई खेल खेल रही है। आवाज़ोन ने इरनाकोफ को बताया कि सोनिया ने कितनी मकारी से साले बिन तालबी को अपने दिमाग से बाहर भेज दिया था और इन दोनों के अंदर आने का रास्ता खुला रखा था। वो इसकी चालाकी को नहीं समझ सके। पहले गए तो उसने समझ लिया कि कोई दिमाग में चोरी छुपे आया है। जब दोबारा गए तो उसने समझ लिया कि अनाबेला है और अनाबेला की साजिश कैसे पकड़ी इसकी भी तफसील बताई। इरनाकोफ ने रानी से कहा, वाकई इस मकारत को समझना बहुत मुश्किल है। इसने कितनी दूर तक चाल चली कि अनाबेला की माँ के दिमाग में अपने टेलीपैथी जानने वाले को पहुंचा दिया और वहां से उसकी चोरी पकड़ ली। आवाज़ोन ने कहा, इसने कह दिया है कि 10 घंटे तक इसके दिमाग में कोई नहीं आएगा। 10 घंटे बाद भी जब अनाबेला जाएगी तो वो इस पर भरोसा नहीं करेगी, शायद उसे अपने अंदर आने से फिर रोक दे। इरनाकोफ ने कहा, अनाबेला अपना एतमाद वहाँ खो चुकी है, अब हमसे दोस्ती रखना चाहती है तो यही बेहतर होगा कि हमारे साथ मिलजुल कर रहे और यहाँ हमारे पास आ जाए।
अन्नाबेला ने कहा, मामा मैं अभी मायूस नहीं हुई हूँ, मैं सोनिया का एतमाद फिर हासिल करूंगी। अभी किबरिया मेरी मुट्ठी में है, वो मुझसे सिर्फ नाराज होकर गया है, मैं अभी जाकर इसे मना लूंगी। तुम फिर सोनिया को एक नादान बच्ची समझ रही हो। बेटा हो, बाप हो, कोई हो, वो किसी भी रिश्ते को खातिर में नहीं लाती। जब इसने शुबा किया है तो वो मरते दम तक तुम पर शुबा करती रहेगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम इसका एतमाद हासिल कर सकोगी। मैं इसका एतमाद हासिल ना कर सकी तब भी इसके बेटे को हासिल करूंगी और इसके जरिए मुझे इसकी बहुत सी बातें मालूम होती रहेंगी। अवाज़ोन ने कहा, मामा ये दुरुस्त कह रही है, इसे दुश्मनों के दरमियान रहना चाहिए। ये किबरिया के जरिए बहुत सी मालूमात हासिल करती रहेगी, इस तरह हम इनकी तरफ से गाफिल नहीं रहा करेंगे। मैं मानती हूँ कि अन्नाबेला को वहाँ रहकर हमारे लिए काम करना चाहिए, लेकिन मैं अन्नाबेला पर इस वक्त अंधा एतमाद करूंगी जब ये हमारे पास आएगी और हमारी रिश्तेदार बन जाएगी। मामा मैं तो वैसे भी रिश्तेदार हूँ, आपकी सौतेली बेटी ही सही, लेकिन बेटी तो हूँ। इरनाकोफ ने कहा, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया और ना ही अपना दूध पिलाया है। इसी तरह मेरा बेटा अवाज़ोन है, इसे मैंने जन्म दिया है, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे बाप रास्पुटिन का खून नहीं दौड़ रहा। ये उसका बेटा नहीं है, लिहाजा तुम मेरी बहू बन जाओ, तुम्हें तुम पर एतमाद करती रहूंगी। अवाज़ोन ने कहा, ओ मामा आप अभी तक नहीं समझ रही हैं, ये किबरिया को फांस कर उससे शादी करना चाहती है। उससे शादी करेगी तो हम सबको फायदा पहुंचेगा। शादी करना जरूरी नहीं है, अन्नाबेला उसे शादी का झांसा देती रहे, मोहब्बत के सब्ज बाग दिखाती रहे और इधर चुपचाप तुमसे शादी कर ले, मेरी बहू बन जाए, कभी कभी हमसे मिलती रहे तो मैं इस पर एतमाद करने लगूंगी। अवाज़ोन ने पूछा, अन्नाबेला तुम क्या कहती हो? मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगी। मैंने किसी लालच और खुद गर्जी के बगैर तुमसे दोस्ती का आगाज किया है और भरपूर अंदाज में अपनी दोस्ती साबित भी की है। इसी तरह आइंदा भी दोस्ती का सबूत देती रहूंगी, लेकिन शादी सिर्फ किबरिया से करूंगी। इरनाकोफ ने नागवारी से पूछा, ये तुम लड़कियों को मुसलमानों में क्या दिखाई देता है? एक बार इन्हें पीछे लगाती हो तो बार बार इनके पीछे पड़ जाती हो। अवाज़ोन ने कहा, मामा इस मसले पर फिर किसी दिन बातें होंगी, अभी अन्नाबेला को अपना काम करने दें, वो सही रास्ते पर जा रही है। अन्नाबेला ने कहा, मामा आप कहती हैं कि हम यहूदी लड़कियां मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? अब मैं साबित करूंगी कि एक मुसलमान लड़की भी यहूदी लड़के से मुतासिर हो गई है और इसी से शादी करना चाहती है, और वो यहूदी आपका बेटा अवाज़ोन है। मैं अल्पा की बेटी को आपके बेटे के पास पहुंचा कर रहूंगी। वो खुश होकर बोली, अन्नाबेला तुम वाकई दोस्ती और मोहब्बत का सबूत दे रही हो। अगर तुमने ऐसा किया तो समझो कि तुमने मेरा दिलो दिमाग सब कुछ जीत लिया। क्या तुमने मेरी बेटी ताशा से मुलाकात की है? अवाज़ोन ने कहा, नहीं, मैं अभी से ताशा के पास ले जा रहा हूँ। वो दोनों ताशा के पास आए। वो एक कमरे में बैठी इन खास मंत्रों का जाप कर रही थी, जिनके असर से अदनान इनकी तरफ माइल होता जा रहा था। अवाज़ोन ने उसे मुखातिब किया, फिर इसे बताया कि इसके साथ अन्नाबेला आई है। पहले ताशा को भी हैरानी हुई कि एक सौतेली इनके पास क्यों आई है। फिर अवाज़ोन ने वजाहत की और इसे बताया कि इनकी मामा भी अब अन्नाबेला पर भरोसा करने लगी हैं और अब ये हमारी फैमिली मेंबर की हैसियत रखती है। ताशा ने इससे मिलकर खुशी का इजहार किया। अन्नाबेला ने पूछा कि तुम किन मंत्रों का जाप कर रही हो? मैं अदनान को अपनी तरफ माइल करने के लिए ये मंत्र पढ़ती रहती हूँ। क्या भाई अवाज़ोन ने तुम्हें बताया है कि अदनान मेरे लिए क्यों जरूरी है? अवाज़ोन ने कहा, मुझे अभी तक मौका नहीं मिला था, हम दूसरे मामलात में उलझे हुए थे। मैं नहीं चाहूंगा कि अन्नाबेला से कोई बात छुपाई जाए, लिहाजा इसे भी बता देना चाहिए कि तुम्हारे और अदनान के जायचे से ये साबित हो रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ इस द्वाजी जिंदगी गुजारोगे। वो अब से 15 बरस के बाद तुम्हारा शोहर होगा और तुम इसकी बीवी बनकर रहा करोगी। अन्नाबेला ने हैरानी से कहा, अदनान तो अभी पूरे 4 बरस का भी नहीं हुआ और ताशा मेरा ख्याल है कि इससे काफी बड़ी है। हाँ, मैं 14 बरस की हूँ, यानी अदनान से तकरीबन 10 बरस बड़ी हूँ। फिर भी मामा और भाई कहते हैं कि 15 बरस के बाद अदनान एक गबरू जवान होगा और मैं इसके सामने छोटी पड़ जाऊंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसके एक बेटे को जन्म दूंगी और वो बेटा अनूप कोफ होगा। जो मर चुका है वो मेरे बेटे की सूरत में दोबारा जन्म लेगा। अन्नाबेला हैरान हो रही थी। ये बातें मुज़क्का खेज थी, हैरान कुन थी। इसके बावजूद इल्म नजूम के हिसाब से इन दोनों के जायचों के मुताबिक दुरुस्त थी। वो थोड़ी देर तक ताशा के बातें करती रही, फिर उसने कहा, अवाज़ोन 2 घंटे बाद वो त्यारा तो शाम में पहुंचने वाला है। इससे पहले मैं जरा किबरिया से बात करना चाहती हूँ, ताकि उसके दिल में इतनी जगह बना लूँ कि जब सोनिया मेरे खिलाफ इससे कुछ कहे तो इस पर ज्यादा असर ना हो। मुझे यकीन है कि किबरिया मेरी हिमायत में ही बोलेगा। मैं 1 घंटे के बाद तुम्हारे पास आऊंगी।